our class 8 history chapter 1, which talks about how, when, and where. So, for all those who are watching this lesson, I request all of you all to stay connected through the end of the lesson so that you get all important updates about this chapter. And I wish आप लोगों ने जिन्होंने भी बोला था कि ये चैप्टर की ज़रूरत है, I wish this will be of use to you. So let's start with the chapter and let's see कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है. तो चलिए let's begin with the class. So see, first and foremost, the essence of this chapter is to tell you a few things. इस chapter में अगर आप सोचोगे कि कुछ story line है तो नहीं है, ठीक है. कुछ अगर आप ये सोचोगे कि we are talking about rulers and kingdoms, so that is also not the case. Basically in class 8, this is an introductory chapter. जैसे कि आपने क्लास 6th में पढ़ा था what, where, how and when, जहाँ पे you read about the earliest people. तो इस चैप्टर में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिस्ट्री होती क्या है एंड व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक दैट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स. अगर हम लोग हिस्ट्री को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या डिफरेंट हिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी? क्या हमारे पर्सपेक्टिव चेंज से हमें कुछ और नई इंफॉर्मेशन मिलेगी? व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? Who are the major contributors who have contributed to some segment of history? Why do we look at history the way we look at it now? Right? So there are various reasons that are associated to history and its occurrence. कुछ भी events हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग किसके perspective से पढ़ते हैं, that becomes important, क्योंकि जहां आपने perspective बदली वहां आपकी information भी about the same time period बदल जाएंगी. So do not take this as a complication. This is just a brief start, okay? And as we go through the chapter, मैं आपको हर एक important चीज़ समझाते हुए चलूँगी. So I hope by the end you will be crystal clear and very much thorough with the understanding of this chapter. So the first thing, what is history? इतिहास क्या है? सो देखिए, इतिहास की बात अगर हम लोग करें तो अगर इसमें एक बेसिक चीज समझी जाए तो इट इज लर्निंग अबाउट आवर पास्ट, जहां पे हम लोग उस टाइम फ्रेम में जा रहे हैं व्हेन वी वर नॉट एग्जिस्टेंट, ओके, बट स्टिल वी नीड टू गार्नर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, क्योंकि दैट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इन टर्न टेक्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर. सो जो भी चेंजेस होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल ऑफ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. For example, 1910 is history for the people of 2020. But do you think we are going to be history for the future generations? Yes, definitely. So जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे जो चेंजेस आते हैं, those they become a part of your history. It is about finding out how things were in the past and कैसे ये बदल गए. For example, आप ये इमेज को देखो and ये इमेज को देखो. So the same area, it has got a lot of changes within this पैसेज ऑफ टाइम. इस समय लाइफस्टाइल भी बदली होगी और भी कई सारी चीजें चेंज हुई होंगी. सो दैट इज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ हिस्ट्री, जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू टाइम फ्रेम्स. सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कीपिंग द फैक्टर ऑफ टाइम इन माइंड एंड उसके बाद आप उसके अनुसार अपनी इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हो. Moving next, is history all about memorizing dates? So all students, mostly you will see that they'll be very very irritated when it comes to studying history, क्योंकि इनको लगता है कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद रखने होते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. यहाँ पे बात आ जाती है पर्सपेक्टिव की. फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ूं कि मुझे मुगल रूलर्स के बारे में जानना है. So then I can fix it to dates because rules and certain events इनको आप dates में categorize कर सकते हो. But mostly what happens is बहुत सारी चीज़ों को you can't fix a particular date for it. For example, आपने क्लास में टॉप किया, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि you have studied on so and so day and that is why you have topped the examination or topped your class? No, I can't say it because it is an event. It is not just a thing that happens on a single day. It happens with time. आपने कई सारी मेहनत की, आपने पूरे साल काम किया, so you automatically scored well. We can't fix a particular date for it.
बट येस देर आर सर्टन इम्पॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ मेजर इवेंट्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरोनेशन ऑफ सर्टन किंग. अब कोरोनेशन एक ऐसी इवेंट है कि यू कैन फिक्स इट टू अ पर्टिकुलर डेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में तो किंग कोरोनेट होंगे, राइट? कोई बैटल हुई है, बैटल ऑफ प्लासी हुई है, बैटल ऑफ बक्सर हुई है, which you will study about in the upcoming chapters. So those you can fix to particular dates. So history is not only about memorizing dates. There are lot of things in history that cannot be fixed to a particular date, examples of which we will be looking at. अब देखिए, कॉमन सेंस नोशन ऐसा ही होता है कि हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स, डेट्स इज इक्वल टू हिस्ट्री. बहुत बार कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री मुझे बोरिंग लगता है. क्यों? क्योंकि इसमें डेट्स याद रखने पड़ते हैं. लेकिन ऐसा हमेशा सच नहीं होता. दिस इज ओनली पार्शियली ट्रू. Yes, there are important dates that you need to learn, but there is something beyond that. History also gives you a lot of information which is not related to dates. So basically that is how your chapter begins. Now coming to dates and beyond. तो अगर हम लोग ये लिप्टन्स टी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर हम लोग इस एडवर्टीजमेंट की बात करें, इस एडवर्टीजमेंट से ये किया गया था कि ब्रिटिशर्स ने एक टेस्ट डेवलप करवाई थी फॉर टी इन इंडिया. क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने इतने रॉयल एडवर्टीजमेंट्स को दिखाया था. So what happened is people started feeling if they drink tea then they will be very royal, very classy. So do you think that the development of the taste for tea began in just one day or happened overnight? नहीं, it happened over a period of time. तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम लोग इसे एक स्पेसिफिक डेट को अट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या फिर एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिए थे. नो, ब्रिटिशर्स वर ड्रिंकिंग टी, दे वॉन्टेड टू मार्केट द टी. तो इन्होंने बहुत अच्छे से एडवर्टाइजिंग की इस्तेमाल की थी. सो इसके द्वारा क्या हुआ था, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग, लाइक इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल सी सम काइंड ऑफ रॉयल्टी इन्वॉल्व. 3 ladies sitting and then you will see that they are having this Lipton tea, sipping it. So this way the taste of tea developed over a period of time. So this is also a part of your history, right? But it is not associated with a single date. सिमिलरली क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी दिन ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ था? नो, वी कैन से दैट यस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August, बट कैन वी से कि नेशनल मूवमेंट पूरी की पूरी जो नेशनल मूवमेंट थी वो बस एक दिन में ही स्टार्ट हुई और उसी दिन कल्मिनेट हो गई? नहीं, 15th August वॉज आर इंडिपेंडेंस. बस इसके पहले बहुत सारे ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स हुए, राइट? सो दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Like you can see Bhagat Singh, Mangal Pandey, you can see Sarojini Naidu, you can see the Indian National Movement. Similarly, Britishers पहले यहाँ पे traders के रूप में आए, ठीक है. धीरे धीरे ये लोग political rulers बन गए. So in this way, it is not a particular date कि इन्होंने सब कुछ achieve किया. ये सब एक stretch of time से चलता गया. So nothing very important till here. Just understand that they are talking about what actually is the essence of history and what is the way that you can look at it. इसके बाद भी अब मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स दे दिए, लेकिन फिर भी हम लोग हिस्ट्री को डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं? क्योंकि एक रीज़न है. पहले के जो लोग थे या फिर जो हिस्टोरियंस थे वो लोग एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को देखते थे. So this perspective was mainly about seeing the rules of the kings, okay, seeing what were the battles that were fought, कुछ भी major events थी उनको देखते थे. तो अब obvious ही बात है, if you study major events then you will have a time period with them. So इसीलिए हमें कई सारे dates मिलते गए. For example, coronation, battles, chronology of various kings. इस तरीके से हमने हिस्ट्री को थोड़ा सा सिनोनिमस कर दिया डेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वैसा था. बट डू यू थिंक इफ वी स्टार्टेड स्टडिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें फिर भी उतनी ही डेट्स मिलती? नहीं मिलती. सो दिस इज वन मेजर रीजन वाई वी फील दैट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, क्योंकि पहले लोग ज़्यादातर उन्हीं इवेंट्स के बारे में पढ़ते थे जो कि डेट स्पेसिफिक थे. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं बायो की क्लासेस. जो बॉडी के पार्ट्स हम पिक्चर्स में देखते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उन्हें एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है.
फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन की जा सकती थी, इसीलिए नोशन ऑफ हिस्ट्री बीइंग सिनोनिमस टू डेट्स इट केप्ट राइजिंग. सो ये जो नोशन था कि हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स, डेट्स इज इक्वल टू हिस्ट्री, ये इंक्रीज होते गया, एंड दिस इज वाई वी एसोसिएट हिस्ट्री टू डेट्स. But now in this chapter, the major thing that we will study is that there are other aspects of history. तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया कि हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स. हाँ, हम लोग क्यों एसोसिएट करते हैं ये भी हम लोग जान लिए, क्योंकि हम लोग उन्हीं इवेंट्स के बारे में पढ़ते थे जो कि डेट स्पेसिफिक थे. बट अब हम लोग उन इवेंट्स को देख रहे हैं जो कि डेट स्पेसिफिक नहीं है. सो हैविंग हैड अ लुक एट दिस इवेंट्स वी विल अंडरस्टैंड कि हम लोग पास्ट के बारे में और भी कई चीज़ जान सकते हैं विच डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी एसोसिएटेड टू एनी काइंड ऑफ डेट्स. फॉर एग्जाम्पल्स, दिस डेज हिस्टोरियंस राइट about a lot of other issues. What are those issues? They write about the lifestyle of people. कि लोग कैसी लाइफस्टाइल जी रहे थे. आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि पीपल वो हंटर गैदरर्स पहले, उसके बाद वो लोग फार्मिंग हर्डिंग में मूव किए, राइट. ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लाइफ्स कैसी थी, विलेज लाइफ कैसी थी, किंग्स कहाँ रहते थे, ओके, कंट्री साइड में लोग किस तरीके से रहा करते थे, वो लोग ने प्रोडक्शन अपनी कैसे की, वाई डिड दे सेटल नियर रिवर एरियाज, राइट. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड. वो लोग क्या खाते थे. फॉर एग्जाम्पल, यू रेड दैट व्हीट एंड बार्ले वर सम ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स दैट वर ग्रोन बाय मैनकाइंड, है ना. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी हमें मिली है क्योंकि हिस्टोरियंस दे चोज टू स्टडी अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. इसके अलावा हमने देखा कि सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, कैसे कैसे न्यू मार्केट्स आने लग गए, रीजनल किंगडम्स कैसे ग्रो हुए. सो व्हेन वी स्टडीड अबाउट सिटीज़ वी रियलाइज्ड एंड वी स्टडीड कि इंडस के अराउंड, इंडस रिवर के अराउंड सबसे अर्लियर सिटीज़ देखने को मिली थी. उसके बाद गंगा रीजन में गए, राइट. मगध वॉज अ किंगडम दैट वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ रिवर सन विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. सो इस तरीके से वी डेल्व्ड इनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल. तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि इन सारी चीज़ों में जब हम ध्यान देने लग गए तो ये वैसे इवेंट्स नहीं थे जो कि एक डेट से स्पेसिफिक थे. इन दिस इमेज यू कैन सी दिस आर प्रिमिटिव मैन. सो वी आर बेसिकली, ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली an outcome or an evolved species. We have come from the species of apes and monkeys itself. So you can see in this image very well they are doing activities like hunting, gathering, etc. It is nowhere close to the lives that we are living now. So this is also history for us. मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किंगडम्स कैसे फॉर्म हुए, न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुई. अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग कि रूल्स किनका था, रूल किनका था, इनके बाद कौन से रूलर्स आए, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ये भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो रही थी किंगडम में. सो दे आर नॉट डेट स्पेसिफिक. कल्चर इन सोसाइटी कैसे चेंज हुई, वर्ना सिस्टम आया, राइट. फिर न्यू पीजेंट सोसाइटीज़ आई, धीरे धीरे न्यू क्लैन्स आ गए, न्यू ग्रुप्स आ गई, विच ग्रुप बिकेम इम्पॉर्टेंट. सो इस तरीके से अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन वी गेट इन टू आवर पास्ट. अगेन कमिंग टू वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया किसने प्रोड्यूस किया था. वॉज इट जेम्स रेनल, वॉज इट रॉबर्ट क्लाइव, वॉज इट जेम्स प्रिंसिप और नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा आंसर जेम्स रेनल. ये एक कार्टोग्राफर थे. ही वॉज अ कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर आर पीपल हु मेक मैप्स और हु ड्रॉ मैप्स, ठीक है. सो जो भी लोग मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं. सो फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया जेम्स रेनल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था. हु वॉज बेस्टोर्ड विद द टाइटल द ड्यूक ऑफ कनॉट. जेम्स रेनल, प्रिंस आर्थर, प्रिंस चार्ल्स और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंस आर्थर. Some dates become vital as we choose to focus around them. अब कुछ dates important क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी डिसीजन है, हमारी डिसीजन है उनको इम्पॉर्टेंट बनाने की. अब फॉर एग्जाम्पल आज भी आप देखोगे कि हमने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स पे फोकस किया. क्यों किया, क्योंकि देखो इसके पीछे एक रीज़न है. ये हिस्ट्री उस समय की है जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे. सो डेफिनेटली जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल हैं. They definitely wanted to show themselves in good light. So that is why जो हमारे historical facts हैं mostly उनके around revolve करते हैं. So some dates become vital क्योंकि we have chose to focus around them. But do you think at the same time, मान लीजिए किसी British Governor General की रूल चल रही है,
We are talking about this. Do you think other people were not existing at that time? Do you think we can't get other information about that same time period? We can. But these dates have become important because we have revolved our study area around it. Moving forward, who became the first Governor General of India in 1773? Warren Hastings, Lord Mountbatten, Lord Cornwallis और Lord Bentinck. So यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन कमिंग बैक टू इम्पॉर्टेंट डेट्स. देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं. बट उसी टाइम पीरियड के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए अगर हम अपनी लाइन ऑफ स्टडी को चेंज कर दें तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि जिस समय ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल रूल कर रहे थे, ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी, राइट? ऑर्डिनरी पीपल्स लाइव्स. सो इफ़ वी चेंज आवर एरिया ऑफ स्टडी, हम लोग को सेम टाइम पीरियड के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. For example, today I am focusing on what you have done in the past week, okay? So I'll get information about you. But in the same time period, if I focus on what somebody else was doing during this time period, तो वो भी तो information मिल जाएंगी. And that will be the same history, same time period that we are talking about. So we also started shifting our focus towards development of culture, development of ideas. So इस तरीके से हमें और भी कई सारी information मिल सकती है about the same time period. और इसी तरीके से जब lines of study change होती है तो old dates new dates से replace हो जाती है. For example, Mr. X ने किसी 1950 की study की. इन्होंने हमें suppose about the बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बताया और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की स्थिति कैसी थी वो बता दिया. अब वाई ने स्टडी की 1950 की, ये हमें बताने लग जाएंगे अबाउट द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर कमिंग अबाउट. ही कैन टॉक अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स, कैसे कैसे इंटीग्रेट किया गया. सो इस तरीके से आपके न्यू इन्फॉर्मेशन से डेट्स भी बदलती जाती हैं और ओल्ड डेट्स को न्यू डेट से रिप्लेस कर दिया जाता है. नाउ कमिंग टू अनदर मेजर part of the chapter. Why do we divide history into different time periods? Very very important chapter. History को क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए आपको उनको एक कैटेगरी में एसोसिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Only then will you be able to study in a synchronized manner. अगर आप नहीं ऐसा करोगे, अगर आप पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी इन अ नॉन सिस्टमैटिक मैनर. सो दैट विल मेक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरी वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड रीज़न इज़ कि इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट. हमें क्या आइडियाज़ है किसी एक पीरियड के बारे में वो भी पता चलता है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपैरिजन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पीरियड में क्लासीफाई नहीं किया, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम, राइट? But if you classify them, then you can notice the different characteristics. You can have different ideas about each time period. इसीलिए periodization is very very important. अब देखिए हम लोग periodize कैसे करते हैं. So basically यहाँ पे बात हो रही है एक renowned economist की, who is James Mill. He was from Scotland, इसीलिए इन्हें स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर कहा गया है. 1817 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक पब्लिश की विच वॉज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन्होंने क्या किया इस बुक में, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया. दिस वॉज एज पर हिज चॉइस और इनकी चॉइस क्या थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. अब अगर मैं आपको जनरली पूछूं कि इस पीरियोडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है, so you will definitely be able to understand कि मैम is it the only religion that were there in the subcontinent? और भी तो कई सारे religions थे, right? Were there only Hindus? Were there only Muslims? तो अगर हमने ऐसे कैटेगराइज किया तो what about the other people? क्या सिर्फ ब्रिटिश ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ स्टडी थे? इंडियंस में क्या और कई लोग नहीं थे जिनके बारे में पढ़ना था? येस, डेफिनेटली दैट इज़ अ क्वेश्चन. बट इनकी जो पीरियडाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट हुई क्योंकि अगेन वी वर दैट टाइम अंडर द ब्रिटिशर्स एंड ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये उनके
उनके ही बेनिफिट में थी. सो ही पीरियडाइज्ड इट इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. अब इसमें देखते हैं क्या होना था. देखिए, रेफरिंग टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री, अगर हमने एक पीरियड को हिंदू कर दिया, एक पीरियड को मुस्लिम कर दिया, इट इग्नोर्स द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ फेथ्स. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक क्लासरूम है, राइट, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, एवरीबडी इज देयर. So what if I say, what if I categorize it as only a male dominant class? तो I'll be missing out the other segment of the population. अगर मैंने क्लासरूम में बस ये कर दिया कि शॉर्ट मेल, टॉल मेल, फैट मेल एंड लीन मेल फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, मैंने फीमेल्स को एक्सक्लूड कर दिया. तो अब ये तो एक रॉन्ग डिस्टॉर्टेड स्टडी हो गई ये क्लासरूम की, क्योंकि फीमेल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्लासरूम, राइट. वट इफ आई डू इट द अदर वे राउंड, सिर्फ फीमेल को कंसिडर कर दिया, मेल को नहीं किया. सो इससे क्या होता है, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर ग्रुप इज डिनाइड. सिमिलरली विद जेम्स मील्स क्लासिफिकेशन, हिंदू पीरियड को तो उन्होंने देख लिया, बट मुस्लिम पीरियड को भी देख लिया, ब्रिटिश के रूल को भी देख लिया, बट जो साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस थी और कई फेथ्स की और कई लोगों की, उनको इग्नोर कर दिया. ऑल्सो एक एंटायर एज को अगर आप सिर्फ रूलर्स के रिलीजन से क्लासिफाई कर दोगे, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट कि लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट मैटर. फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम जो इन्होंने किया था, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सुल्तान्स, तो इन्होंने मुस्लिम्स कर दिया वहां पे, राइट. बट दैट डज नॉट मीन कि वहां पे ऑर्डिनरी लोग नहीं थे. सो आप सिर्फ रूलर्स के आधार पे तो एक पूरी पीरियड को क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है तो यू हैव टू टेक दैट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो दिस वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ पीरियडाइजेशन. मूविंग फॉरवर्ड, मिल्स वर्जन. अब मिल क्या सोचते थे, ये जो मिल थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, इनका मानना था कि एशियन सोसाइटीज अंडर डेवलप्ड है. इनको ऐसा लगता था कि इंडियंस के लिए ब्रिटिश रूल इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर समबडी हु विल ब्रिंग मॉडर्निटी टू इंडिया. ऐसा मिल का मानना था, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, बिकॉज इंडियन ट्रेडिशंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट थी. लेकिन इनको ऐसा लगता था कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स दे रूल द कंट्री. जिनको अकल भी नहीं थी कि कैसे चलाया जाता है, वो लोग रूल कर रहे थे. और ब्रिटिशर्स का यहाँ आना हमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, हमें सिविलाइजेशन को आगे लेके जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो टीच अस मेनी मोर थिंग्स. सो दिस वॉज मिल्स वर्जन. बट वॉज इट ट्रू? इट वॉज नॉट ट्रू. मिल का कहना था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस सच एज सती एट्सेट्रा, ये सब बहुत ज़्यादा इंडिया में डोमिनेंट थी. तो इनको लगता था कि क्योंकि ब्रिटिश मॉडर्न है और एजुकेटेड हैं, तो ये लोग इंडिया को सिविलाइज कर देंगे. सो व्हेन यू ग्रो अप यू विल रीड अबाउट सम कंसेप्ट नोन एज ओरिएंटलिज्म, okay, and you will read about people who were against this. You will read about anglicized versions. So यहाँ पे आपको पता चलेगा कि there were a set of population जो ये सोचते थे कि इंडिया is a very inferior nation और इनको डेवलप करने के लिए वेस्टर्न पावर्स की ज़रूरत है. सो मिल वॉज अमंगस्ट वन ऑफ देम. मिल की पीरियडाइजेशन हमने देखी और फिर हमने उनकी पीरियडाइजेशन के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थी, वो भी समझा. मिल का वर्जन क्या था विथ रिगार्ड टू इंडिया, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. ओके, इनको क्या लगता था कि यूरोपियन मैनर्स, यूरोपियन आर्ट्स, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, लॉज, ये सब इंडिया में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. इसी तरीके से इंडिया विल मूव आउट ऑफ इट्स सोशल बैरियर्स. मिल ने तो इनफैक्ट यहाँ तक सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को और भी कई ज़्यादा टेरिटरीज एंड इनफैक्ट द होल ऑफ इंडिया कॉन्कर कर लेना चाहिए, ताकि इंडियन पीपल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए और इनकी दिमाग की बत्ती जल जाए, विच इज़ एनलाइटनमेंट. So basically what Mill was trying to say is that Indians are very backward, they are uneducated, they are not following the good things, okay, they need to be modernized, क्योंकि otherwise Indians will never be able to enlighten themselves. This was Mill's version of history. In this idea of history क्या देखा जा रहा है कि ब्रिटिश रूल ही है जो है. अगर ब्रिटिश रूल रहेगा तो हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, वी विल बिकम अ सिविलाइज्ड नेशन, अदरवाइज वी विल जस्ट बी अंडर द डार्क. सो इस पीरियड में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा एक अपर हैंड दिया गया है.
period before British rule is seen as an era of darkness. बट आज अगर हम लोग उसी पीरियड की बात करें, अबाउट द सेम पीरियड दैट मिल इज टॉकिंग, क्या हम लोग इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि विद टाइम इंडियंस को ये पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स हैड ओनली कोलोनाइज्ड अस एंड उन्होंने हमें सब्जुगेट किया था। इनके वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। सोशली हमने बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी देखने को मिली थी, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस, जैसा कि मिल कहना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दैट कंसेप्शन हैज़ चेंज्ड विथ रिगार्ड टू टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी एक पीरियडाइजेशन क्या होती है, इसमें कई सारे हिस्टोरियंस हैं वो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइड कर देते हैं, और उस हिसाब से हम लोग फिर अपने अपने जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको उस एज में, उस टाइम फ्रेम की चीज़ों को उसी पीरियड के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। दिस पीरियडाइजेशन वी हैव बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। मॉडर्न पीरियड में क्या देखने को मिला है? ग्रोथ ऑफ साइंस, ग्रोथ ऑफ लॉजिक, ग्रोथ ऑफ रैशनैलिटी, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो कि ये सब पहले एग्जिस्टेंट नहीं थी। मेडिवल सोसाइटी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंशियंट क्या हो गया? इससे भी ओल्डन हो गया, जहाँ पे इट वॉज अबाउट प्रिमिटिव मैन। सो बेसिकली दिस चैप्टर डज नॉट गो इन अ सीक्वेंस। यहाँ पे आपको बस जनरल इंफॉर्मेशन की हिस्ट्री को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे उनका अर्थ निकाल सकते हैं, क्या हम उसे अपने नज़रिए से देख सकते हैं, क्या दो लोग हिस्ट्री के बारे में सेम टाइम पीरियड के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इफ देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन वी स्टडी अबाउट दैट, राइट। सो दिस इज ऑल दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। मूविंग फॉरवर्ड, सिंस हमने ब्रिटिशर्स की बात की तो कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे। अंडर ब्रिटिश रूल क्या था? लोगों के पास इक्वालिटी नहीं थी, डेफिनेटली, वो तो हमें पता ही है। फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था। दैट इज़ वाई हमने एक फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किया था व्हेन वी हैड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस समय पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, हमें फिनिश्ड गुड्स बेचते थे, प्लस यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पूरे के पूरे ब्रिटिश हैंड्स में आ गई थी। सो इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्टॉल कर दिया गया था। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। बट अगर मिल के वर्जन में देखें तो मिल क्या कहना चाह रहे हैं? मिल यही कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल वॉज वेरी वेरी गुड, इट वॉज very very good, it was very very starry and very very amazing for the Indians, but this was not the case. Many historians इस पीरियड को इसीलिए colonial कहते हैं क्योंकि हम एक कॉलोनी थे। We were not a republic. रिपब्लिक क्या होते हैं? इनकी अपनी राइट्स होती हैं, लेकिन उस समय हम बस एक ब्रिटिश की कॉलोनी बन के रह गए थे, इसीलिए इस पीरियड को colonial में भी पीरियडाइज किया गया है। ब्रिटिश ने सब्जुगेट कैसे किया? देखिए, ब्रिटिश ने पॉलिटिकली सब्जुगेट किया। सब्जुगेट मतलब डोमिनेट, सब्जुगेट मतलब किसी के अंडर हो जाना, ओके। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। सो वी वर पॉलिटिकली सब्जुगेटेड, वी वर इकोनॉमिकली सब्जुगेटेड, सोशली सब्जुगेटेड, एंड बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी लाए गए थे। इन पूरी प्रोसेस को क्या टर्मिनोलॉजी से बताया जाता है? इट इज़ कोलोनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच वन कंट्री सब्जुगेट्स or takes hold or dominates the other by causing changes in its political, economic, social and cultural factors. That process could be defined as colonization. So it's a very very beautiful definition and I hope you guys should be able to learn it, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सब्जुगेशन था, आपको मालूम है, इन्होंने सारे ऑफिसर्स कंट्रोल कर रखे थे। इकोनॉमिक सब्जुगेशन आपको डेफिनेटली पता है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट फॉलो हो रहा था विच वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ। दिस इज अ बुक दैट वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी हु वॉज अ मॉडरेट, ओके, एंड इन्होंने एक्सपोज किया था ब्रिटिश के इल इंटेंशंस को विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमी। सोशल सब्जुगेशन था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प टू अबॉलिश सती, दे बैंड चाइल्ड मैरिजेस, दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट विडो री मैरिज, राइट। कल्चरल चेंजेस लाए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी किया था, राइट। सो इन दिस वे ब्रिटिश हैड एक्चुअली टेकन कंट्रोल ओवर द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? आप एक कंट्री को कॉन्कर करते हो, अपना रूल इस्टेब्लिश करते हो।
यहाँ पे इन्होंने यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने जो लोकल नवाब्स थे, लोकल किंग्स थे, उनको भी सब्जुगेट कर लिया. यू हैव हर्ड अबाउट पॉलिसीज लाइक सब्सिडियरी अलायंस, पॉलिसीज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट. इन सारी चीज़ों से इन्होंने यहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश किया. इकोनॉमी एंड सोसाइटी को भी ये लोग कंट्रोल करने लग गए. बहुत सारी दीवानी राइट्स ऑब्टेन की थी, फरमान्स ऑब्टेन किए थे फ्रॉम मुगल एम्परर्स, ताकि ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके. यहाँ से कई कई ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट की गई थी ताकि ये लोग अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके. इंडियन गुड्स ये लोग बहुत ही लो प्राइसेस में खरीदते थे और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में हमें बेचते थे. हमारी ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो बिल्कुल डाई आउट कर गई थी, राइट. दे हैड एस्टैब्लिश्ड एंटायर कंट्रोल बाय मेकिंग चेंजेस इन इंडियन वैल्यूज, टेस्ट. लिप्टन टी की बात मैंने दिखाई, राइट. ये लोग ऐसा दिखा रहे थे कि जो भी ये ब्रिटिशर्स करते हैं दैट इज़ वेरी एलिट, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी पॉश. सो इस तरीके से इन्होंने अपने रूल के साथ एक रॉयल्टी को एसोसिएट कर दिया था. और इन ऑल दिस वेज दे एस्टैब्लिश्ड अ पॉलिसी ऑफ कोलोनाइजेशन एंड दे कोलोनाइज्ड इंडिया. अगेन, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस. अब हमें जो ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है ये कहाँ से मिलती है? तो एक तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. ब्रिटिश को क्या था, ब्रिटिश दे यूज टू बिलीव इन द एक्ट ऑफ राइटिंग. उनको ऐसा लगता था इफ़ वी हैव टू गवर्न अ प्लेस वी शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और उस कंट्रोल के लिए हमें उस जगह की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा. और इससे क्या होता था, प्लीज करेक्ट दिस वुड बी नोटिंग्स, ओके. सो इस तरीके से क्या होता था कि इन्होंने कई सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किए और ये डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए गए थे. ये आज भी अवेलेबल होते हैं इन व्हाट वी नो एज आर्काइव्स. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. सो इस तरीके से हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सेकेंड सोर्स ऑफ स्टडी इज सर्वेज. जैसे कि आज भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी चीज़ के बारे में तो हम लोग कई सारे सर्वेज फिलअप करते हैं. सिमिलरली उन्होंने भी बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट किए थे जिससे हमें कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विच सर्व एज सोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस. सर्विस किस काइंड्स की थी? कई सारे काइंड्स की थी. एक थी रेवेन्यू सर्विस जो कि विलेजेस में कंडक्ट की जाती थी. ये इसलिए की गई थी ताकि ब्रिटिशर्स अनुमान लगा सके कि किस एरिया से वो लोग कितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सेंसस की जाती थी जो कि अभी भी प्रैक्टिस होती है इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2021. दिस इज डन एवरी 10 years or 5 years. लेट मी नो ऑफ दैट, ओके. बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, तो इस तरीके से कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होती हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज. सो इस तरीके से दिस ऑल्सो सर्व एज सोर्सेज फॉर द हिस्टोरियंस. व्हाट वर रेवेन्यू सर्वेज? देखिए ये विलेजेस में कंडक्ट होती थी. इसके बाद आपको उस एरिया की टोपोग्राफी पता चलती थी, सॉइल की क्वालिटी कैसी है वो पता चलती थी, वहाँ पे कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं वो पता चलते थे. लोकल हिस्ट्री जानने को मिलता था, क्रॉपिंग पैटर्न समझने को मिलता था. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने इंडिगो कल्टीवेशन फोर्स किया था, राइट. परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की थी. ये सब उसी बार इंट्रोड्यूस की जाती थी जब इन्हें ये पता चल जाता था कि एक एरिया के क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सो दैट इज़ वाई दे फेल्ट इट इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें किसी रीजन को एडमिनिस्टर करना है तो हमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इसीलिए ये लोग ये सारी सर्वेज करते थे एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रेवेन्यू सर्वेज. कमिंग टू सेंसस, दिस आर हेल्ड एवरी 10 years. यहाँ पे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मिलते हैं आपको डेमोग्राफी की. व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी यू हैव स्टडीड इन योर ज्योग्राफी. इट इज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनी गिवन प्लेस. यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका कास्ट ग्रुप कैसा है, किस रिलीजन के किस पॉपुलेशन से लोग रह रहे हैं, पीपल आर इनटू विच ऑक्यूपेशंस, व्हाट इज द एंटायर पॉपुलेशन, व्हाट इज द मेल फीमेल रेशियो. ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सेंसस के द्वारा मिलती है. कमिंग टू व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. अब सोर्सेज तो पढ़ लिए लेकिन इनके ड्रॉबैक्स क्या है? तो देखिए ये जो रिकॉर्ड्स थे ये बेसिकली रूलर्स के द्वारा मेंटेन किए जा रहे थे. ये जो हाई एंड ऑफिशियल्स थे वो लोग मेंटेन करते थे. सो यहाँ पे हमें बस वन साइडेड व्यू मिल रही है, राइट. जो ऑफिशियल्स हमें दिखाना चाहते थे वही इंफॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल है.
लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, लाइफ ऑफ हाउ द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज डूइंग, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं. Lives of poor people, lives of the tribal people, they remain unknown from official records. So ये कुछ drawbacks हैं इनके. Sources of unofficial records. लेकिन हमें कैसे पता चला कि peasant movements हुए, tribals बहुत ही ज़्यादा तंग थे ब्रिटिशर्स से, सो इन्होंने कई ज़्यादा मूवमेंट्स एंड रिबेलियंस लॉन्च की. So how do we get information about that? For that we rely on unofficial records. What are the sources of that? लोग अपनी अपनी डायरीज लिखते थे जो कि अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाती हैं. अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स. सो हु आर पिलग्रिम्स? व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, पिलग्रिम्स भी ट्रैवल करते हैं बट दे ट्रैवल फॉर रिलीजियस पर्पस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सांग, ये चाइना से आए थे फॉर नोइंग अबाउट बुद्धिज्म. ही स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी एज वेल. सो इनके अकाउंट्स जो रहते हैं, ये लोग जो लिख के जाते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट सर्व्स एज सोर्स ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑटोबायोग्राफीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी रिनाउंड पर्सनालिटी ने खुद की स्टोरी लिख दी, सो वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं. पॉपुलर बुकलेट्स आर देयर, न्यूज़ पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल केसरी, यंग इंडिया, गांधी जी, लाला लाजपत राय, ओके, बिपिन चंद्रपाल, all these people were writing various things. आइडियाज़, पोएम्स, नॉवेल्स. अब ऑटोबायोग्राफीज़ की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो इस तरीके से आपको कई सारी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. क्योंकि क्यों? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे हम लोग कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते. सो द कंक्लूजन दैट कम्स हियर इज दैट टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री में. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू कैन नॉट डिनाई दैट. लेकिन एक सेम टाइम पीरियड के भी कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पीरियड दैट आई एम टीचिंग यू, it is the same time period, suppose 7 o'clock to 8 o'clock. But in 2020, on the very same day, between 7 to 8 o'clock, somebody else will be doing something else, right? So one same time period can have multiple things happening around. And that is why when you change the line of study, you will have different interpretations of any given time period. अगर हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम लोग को और भी ज़्यादा डिटेल्स अपने पास्ट के बारे में मिल जाएंगी. सो ऑल इन ऑल दिस वाज अ वेरी वेरी जनरल चैप्टर जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रिटिशर्स से इंट्रोड्यूस किया गया. आपको ये बताया गया कि हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट येस इट डज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम. We also briefed you as to how do we get this information in history. How much can we rely on them? What is the other side to it? So all of this we have covered thoroughly in this chapter. And in the end, all we can say is that history is important because so much of our future lies in preserving our past. So it is very, very important for us to know about our past, to preserve it, and to pave our way for the future. On that